Hello everyone. So today we start the lecture number 3 of DMLT second year annual examination का question microbiology. This is the lecture number 3. Okay, this is lecture number 3, right? So let's start the lecture. So here you can see the question. Okay, so question number A, B and C we will cover in lecture number 1. Okay, and question number 2 is covered in lecture number 2, right? And question number 3 and 4, uh, these two question, okay, the question number 3 and 4 is covered in lecture number 3, यानी कि आज का जो lecture होगा, ठीक है? So in this lecture we will cover the question number 3 and 4 all the question. Okay, so here ask you to attend the question of any 5 by, but we will do here the all the question, okay, and answer, right? ठीक है, so let's start. So here you can see the first question, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल. ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि राइट ब्रीफली द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. ऑल द क्वेश्चन हियर वी राइट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, राइट? सो देखिए, देख क्वेश्चन पूछा गया है कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल का लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है? So fungal infections of nail, also called as onychomycosis, okay, onychomycosis is commonly caused by dermatophytosis. Okay, यानी कि dermatophytosis then yeast यानी कि कैंडिडा स्पेसिस हो जाएगा, और नॉन डर्माटोफाइट मोल्ड्स, ठीक है? सो फंगल इन्फेक्शंस ऑफ नेल जिसको हम क्या कहते हैं, ओनेकोमाइकोसिस. ओके, एंड इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय डर्माटोफाइट्स, ईस्ट और non-dermatophyte mold. Clear everyone? It lead to the thickened, discolored, brittle and deformed nail. Okay, clear everyone? Next, ठीक है? So just wait a second. As you can see here, just I'll erase all the ink here. Okay, clear? Next we can talk about the main point, that is the laboratory diagnosis. Okay, so पहला हो गया सैंपल स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है? स्पेसिमेन कलेक्शन, सो कलेक्ट नेल क्लिपिंग और स्क्रैपिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द नेल, ठीक है? सो फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द नेल वी कलेक्ट द नेल क्लिपिंग और स्क्रैपिंग, राइट एवरीवन? Then clean the nail with 70% alcohol. We clean, first of all what will we do, that we clean the nail with 70% alcohol before the collection to reduce contamination, right? Okay, so then place the specimen in a clean and dry sterile container, ठीक है? So here first is clean the nail with 70% alcohol before the collection to reduce the contamination, and place the specimen in a clean, dry, sterile container. Clear everyone? How to collect the specimen? Okay. नेक्स्ट इज डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी. हम किसमें करेंगे, KOH माउंट, ठीक है? सो द नेल सैंपल इज ट्रीटेड विथ 10 to 20% पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH. ओके, द नेल सैंपल इज ट्रीटेड विथ 10 to 20% पोटासियम हाइड्रोक्साइड, राइट? Right everyone? Then KOH dissolve keratin and allow the fungal element to be seen under the microscope. What will be KOH done? KOH done that it dissolve the keratin part. Okay, it generally dissolve the keratin part, and next further allow the fungal element to seen under the microscope. ठीक है? So the presence of septate hyphae or yeast cell suggests that it is a fungal infection. अगर septate hyphae या फिर yeast cell आया तो it suggests that it is the fungal infection. Clear everyone? Next is fungal culture. हम fungal को culture कैसे करेंगे, तो ठीक है? So the specimen is cultured on Severus dextrose agar यानी कि SDA without antibiotics, and it incubate at 25 degree to 30 degree Celsius up to 4 week. Okay, it incubate 25 to 30 degree Celsius up to 4 week. ठीक है? Then culture helps to identify the specific fungal species causing the infection. Okay, why we will do culture?
ठीक है। सो बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फंगल स्पेसिस, ओके, which species actually occur the fungal infection. We identify the specific phases, okay, we identify the specific fungus, right? That's why we do culture, okay. Next is microscopic identification. So in microscopic identification, the fungi growth in culture are examined using the lactophenol cotton blue यानी कि LPCB stain. Okay, so for the microscopic identification, we perform a stain, that is LPCB stain यानी कि lactophenol cotton blue, to observe the hyphae and spore for the species identification. Clear everyone? नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी, ओके, इफ रिक्वायर्ड देन वी परफॉर्म द हिस्टोपैथोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, ओके. सो इन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेन द नेल टिश्यू सेक्शन इज स्टेन्ड विथ पास स्टेन यानी कि पास स्टेन, दैट इज पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, एंड GMS स्टेन यानी कि गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन कैन डेमोन्स्ट्रेट द फंगल एलिमेंट इन डिफरेंट केसेस, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द laboratory diagnosis of that fungal infection of nail. Clear everyone? So this is the third number I part, okay. Question number 3 I part. Question is the laboratory diagnosis of Kala-Azar, okay. So we are discuss about here the laboratory diagnosis of Kala-Azar, ठीक है. So Kala-Azar also known as visceral leishmaniasis, right? So काला अजर को हम इस अदरवाइज क्या कहते हैं, visceral leishmaniasis, ठीक है. So it is a chronic parasitic disease caused by Leishmania donovani, ठीक है. सो ये जनरल क्या होता है, एक क्रोनिक पैरासाइट डिजीज होता है जो कि कॉज करता है लेस्टिमिनिया डेनोवनी. इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज, ठीक है. सो ये ट्रांसमिट कैसे करता है, ये जनरली बाइट ऑफ इन्फेक्ट फीमेल सैंड फ्लाई के दौरान, ठीक है. यानी कि फ्लेबोटोमा स्पेसिस जो भी होता है उसके दौरान ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है. एंड मेनली अफेक्ट द स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो एंड लिम्फ नोड, ठीक है. ये जो ऑर्गन है जनरली दीज ऑर्गन्स आर अफेक्ट इन केस ऑफ काला-अजर, ठीक है. सो कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड प्रोलॉन्ग्ड फीवर, वेट लॉस, एनीमिया एंड enlargement of the liver and spleen, ठीक है. So understand here. Next we can talk about the main point, that is the laboratory diagnosis. So पहले हो गया sample collection, ठीक है. So in sample collection the commonly collected specimen are bone marrow aspirate, okay. So we collect the sample, that is bone marrow aspirate यानी कि most commonly it is used. Then is splenic aspirate. It is highly sensitive but performed with a caution due to the risk of bleeding. Then next is lymph node aspirate, okay. So in lymph node aspirate it is when enlarged, then lymph node aspirate will be done. Next is peripheral blood or serum. So peripheral blood or serum for serological test, ठीक है. So these are the specimen collection sample, ठीक है. Next part is microscopic examination, ठीक है. So in case of microscopic examination, smear prepared from the bone marrow, ठीक है. जो भी smear prepare करता है from the bone marrow और splenic aspirate are stained with Giemsa stain, ठीक है. So these two samples are stained with Giemsa stain and microscopy show the Leishman Donovani यानी कि LD bodies, ठीक है. Leishman Donovani bodies, ठीक है, inside the macrophage, okay. So inside the macrophage LD bodies are shown, right. Then demonstration of LD bodies, it confirms the diagnosis. Clear everyone? Next it's culture, ठीक है. अगर हम कल्चर की बात करें तो स्पेसिमेन में भी कल्चर्ड और नोवी मैकनियल न्यूक्ली, ठीक है. सो NNN मीडियम, ठीक है. एंड दी पैरासाइट ग्रोज एज प्रोमास्टिगेट्स, ठीक है. दीज पैरासाइट्स आर ग्रो
एज प्रोमोस्टिगॉट्स which helping in species identification. ठीक है, so these species are help in the species identification. Next is serological test. So in case of serological test, we done RK39 rapid diagnostic test is commonly used for quick diagnosis. Clear everyone? Then ELISA and direct agglutination test यानी कि DAT. ठीक है, so ELISA and direct agglutination test, it detect the antibodies against the leishmania and support the diagnosis. Clear everyone? Next is molecular test. So in case of molecular test, the polymerase chain reaction यानी कि PCR polymerase chain reaction, it detects the parasite DNA with high sensitivity and specificity. ठीक है, सो इन केस ऑफ PCR ये जनरली क्या डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट द पैरासाइट DNA with high sensitivity and specificity. Clear? And it is especially useful in difficult और डाउटफुल केसेस. ठीक है, ये जनरली बहुत ही काम आता है. अगर कुछ डाउटफुल केसेस हो गया तो हम PCR करके हम इजीली पता कर सकते हैं कि क्या हुआ है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिकुलर टेस्ट. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग. ठीक है, सो हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग अंडर इट इज द सपोर्टिव लैबोरेटरी फाइंडिंग्स may include anemia, leukopenia. What is the meaning of leukopenia? Leukopenia means low WBC. Okay, WBC का काउंट जो भी है, और अगर लो होगा, ठीक है, अगर कम होगा तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं. और सिमिलरली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाएगा. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स लो प्लेटलेट काउंट. प्लेटलेट काउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं. एंड क्या होगा, ये सर क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, ये राइज हो जाएगा, तो ये सर राइज्ड. एंड हाइपर गामा ग्लोबुलिनिमिया. ठीक है, ये जनरली शो होगा. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, so this is all about the question number 3 2 I can answer. ठीक है, so now we can talk about the question number 3 का थर्ड आई. ठीक है, so now we have that laboratory diagnosis of viral infections. ठीक है, so the question is laboratory diagnosis of viral infections. ठीक है, so the laboratory diagnosis of viral infection helps that identify the causative virus and confirm the disease. ठीक है, सो द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन जो भी क्या करते हैं, ये जनरली हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई द पॉजिटिव वायरस एंड कंफर्म इट दैट द डिजीज विल बी हैपेंड. ओके, सो कॉमन मेथड इंक्लूड, अगर हम बात करें अगर कॉमन मेथड का, तो पहला हो गया कि स्पेसिमेन कलेक्शन. ठीक है, सो द स्पेसिमेन कलेक्शन आर जनरली ब्लड, okay, then thorax and nasal swab, and then saliva, then urine, then stool, okay, then CSF यानी कि cerebrospinal fluid, then we have vesicle fluid और tissue biopsy. ठीक है, and then the specimen should be collected yearly of the illness and transported properly. ठीक है, clear everyone? then next अगर हम बात करें इसका डायरेक्ट डिटेक्शन. ठीक है, डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ वायरस, पहला हो गया माइक्रोस्कोपी. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर सम वायरस रेयरली यूज टुडे. ओके, इट इज रेयरली यूज टुडे. सम वायरस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वी परफॉर्म. नेक्स्ट इज एंटीजन डिटेक्शन. सो वायरल एंटीजन इज डिटेक्टेड बाय ELISA. इट इज डिटेक्टेड बाय ELISA, देन इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, देन न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन. ओके, so in case of nucleic acid detection we perform PCR or RT-PCR is the most sensitive and widely used method for detecting the viral DNA and RNA. ठीक है, so in case of nucleic acid detection we perform the PCR और RT-PCR. ठीक है, ये बहुत वाइडली यूज होता है फॉर डिटेक्टिंग द वायरल DNA और RNA. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज वायरस आइसोलेशन. ओके, सो इन केस ऑफ वायरस आइसोलेशन, पहला हो गया कि सेल कल्चर. ठीक है, सो इन सेल कल्चर ग्रोथ ऑफ अ वायरस
in suitable cell lines and observation of cytopathic effect, ठीक है। देन एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन, ठीक है। सो अगर हम बात करें एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन का, इट इज यूज फॉर वायरस सच एज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इट इज यूज फॉर दोज वायरस सच एज लाइक इन्फ्लुएंजा, ठीक है। Then laboratories animals, it is rarely used, mainly for research purpose we use the laboratory animal, right? So for the highly research field we use the animal cases. Clear everyone? Next, next हो गया कि serological test, ठीक है। So in case of serological test, these detect the antibodies produced by the patient against a virus, okay. So we perform that against a virus, we detect the antibodies that produce against a virus. Clear everyone? So just wait a second. Okay. So here, so which test will be done? That ELISA, okay, then neutralization test, then heme agglutination inhibition test, and then complement fixation test, ठीक है। एंड देन डिटेक्शन ऑफ IgM यानी कि रिसेंट इन्फेक्शन। अगर हम IgG की बात करें तो ये क्या क्या शो करता है, दैट पास्ट इन्फेक्शन और इम्यूनिटी। इफ आई टॉक अबाउट द IgM, इट डिटेक्ट द रिसेंटली इन्फेक्शन। IgG क्या करता है, इट डिटेक्ट द पास्ट इन्फेक्शन। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया मॉलिकुलर मेथड, ठीक है। सब मॉलिकुलर मेथड की अगर हम बात करें, यानी कि PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। RT-PCR क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, देन रियल टाइम PCR, देन DNA और RNA सीक्वेंस whenever it required. Clear everyone? नेक्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 3 IV, यानी कि पूछा गया है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर साल आता है क्वेश्चन में, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। तो पहला हो गया कि स्पेसिमेन कलेक्शन, ठीक है। तो स्पेसिमेन कलेक्शन हम कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं? तो इट कलेक्ट द पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। हम कहाँ पर कलेक्ट करते हैं? कलेक्ट द पेरिफेरल ब्लड ड्यूरिंग और जस्ट बिफोर ए फीवर स्पाइक, जस्ट और बिफोर ए फीवर स्पाइक, when parasites are most likely to be present in the bloodstream. Whenever the parasites are mostly present in the bloodstream, यानी कि जो जब भी फीवर ज़्यादा होगा, ठीक है, फीवर स्पाइक में होगा, उस टाइम हम पेरिफेरल ब्लड में से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो ब्लड होता है, ब्लड में भी कलेक्टेड इन द EDTA ट्यूब, ठीक है। ब्लड हम किस ट्यूब पर करते हैं? EDTA ट्यूब, ठीक है। जो भी वाइल हम यूज करते हैं लैब में, तो EDTA वाइल जो भी होता है उसको हम यूज करते हैं, और यूज इमीडिएटली टू प्रिपेयर द ब्लड स्मीयर। क्लियर एवरीवन? देन नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दो ही होगा, एक तो हो गया थिक ब्लड स्मीयर, दूसरा हो गया थिन ब्लड स्मीयर। तो इन केस ऑफ थिक ब्लड स्मीयर, it is used to detect the presence of malaria parasite, ठीक है। it is used to detect the presence of malaria parasite because it concentrate the blood and it increase the sensitivity, understand? It is concentrate the blood, in case of thick blood smear, generally it detect the malaria parasite. Why? Because it concentrate the blood and अगर इसका sensitivity भी ज़्यादा होगा, ठीक है। If I talk about the thin blood smear, it is used to identify the species of plasmodium. थीन ब्लड स्मीयर में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सी स्पेसीज है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का कौन सा स्पेसीज है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड एक्सेस द लेवल ऑफ पैरासाइटेमिया, ठीक है। सो स्मीयर आर स्टेन विथ जिम्सा स्टेन, ठीक है। सो व्हिच स्टेन विल बी परफॉर्म इन केस ऑफ मलेरिया? जिम्सा स्टेन, एंड एग्जामाइंड अंडर ए माइक्रोस्कोप फॉर मलेरियल पैरासाइट। क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो थिन ब्लड स्मीयर we use to identify the species of
plasmodium. Clear? And the stain is performed, that is Giemsa stain. Okay. नेक्स्ट नेक्स्ट इज RDTS यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हम कहते हैं, रैपिड मीन्स फास्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या होगा, फास्ट आएगा। तो RDTS यानी कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इट डिटेक्ट द मलेरियल एंटीजन। ये जनरल क्या कहता है, मलेरियन एंटीजन हम डिटेक्ट करते हैं उसमें इन द पेशेंट ब्लड यूजिंग इम्यूनोक्रोमाटोग्राफिक मेथड, ठीक है। So they provide result within 15 to 20 minutes and are useful in places where microscopy is unavailable. Clear everyone? Clear? Then fourth हो गया कि quantitative Boffy-Coat test यानी कि QBC। तो QBC क्या होता है, this method is use a fluorescent dye. It is used to fluorescent dye, ठीक है, and centrifuge blood to detect the malarial parasite in the Boffy-Coat layer. Okay, and it is also a rapid and sensitive. It is also rapid and sensitive, but require a specialized equipment. Okay, it requires generally a specialized equipment. Clear everyone? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेल्मिन्थेस। ओके, सो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट वी स्टडी द लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेल्मिन्थेस। क्लियर एवरीवन? सो हेल्मिन्थेस क्या होगा कि हेल्मिन्थियासिस इज डायग्नोज्ड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रेजेंस ऑफ वर्म्स, एग और लार्वा इन द क्लिनिकल स्पेसिमेन, ठीक है। सो इन केस ऑफ हेल्मिन्थियासिस इट इज डायग्नोसिस द प्रेजेंस ऑफ worms, egg and larva in the clinical specimen, ठीक है। So specimen collection in case of if I talk about, then we collect the stool, we collect stool as the primary specimen, ठीक है। We collect generally stool for the primary specimen. Blood, urine, sputum and tissue sample may be collected depending on the suspected parasite, ठीक है। सो पैरासाइट क्या है, पैरासाइट क्या आएगा उसके ऊपर ये डिसाइड करता है कि हम सैंपल क्या लें, ठीक है। बट द प्राइमरी स्पेसिमेन वी परफॉर्म दैट इज स्टूल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि स्टूल एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, in case of macroscopic examination we look for adult worms or worm segment, ठीक है। we look for adult worm or worm segment. In case of microscopic examination we detect the egg, larva and ova, ठीक है, using the direct saline smear, iodine preparation and concentration technique, ठीक है। so it detect the so this is the overview of stool examination. clear everyone? नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ ब्लड एग्जामिनेशन वी परफॉर्म द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द माइक्रोफाइलेरी इन फाइलेरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, CBC करेंगे यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट may be show the eosinophilia, it's suggesting the parasite infections. okay नेक्स्ट हो गया कि सेरोलॉजिकल टेस्ट। तो इन केस ऑफ सेरोलॉजिकल टेस्ट such as ELISA which helps to detect the antibodies or antigens especially in tissue helminth infections, ठीक है। so in case of serological test we perform the ELISA. clear everyone? नेक्स्ट हो गया कि मोलिकुलर मेथड। सो वी नो दैट इन केस ऑफ मोलिकुलर मेथड PCR इज द सेंसिटिव मेथड, ठीक है। सो PCR इज द सेंसिटिव मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द हेल्मिन्थ DNA एंड इट कन्फर्म द स्पेसीज। ओके, सो इमेजिंग एंड बायोप्सी की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT स्कैन करेंगे। बायोप्सी में भी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द वर्म्स और cyst in tissue and intestinal organs. clear everyone? next, ठीक है। so here you can see that the molecular method that PCR detect the RNA of Plasmodium species. okay,
सो ये जनरली क्या करता है, इट डिटेक्ट द डीएनए केस, ओके, डीएनए ऑफ द प्लाज्मोडियम स्पेसीज, एंड इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्पेशली फॉर लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये जनरली क्या होगा, हाईली सेंसिटिव होगा, स्पेशली फॉर लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन, बट इट इज मेनली यूज इन रेफरल, but it is mainly used for the reference laboratories. Clear everyone? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का VI यानी कि लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइलेरियासिस भी कहते हैं। तो द स्पेसिमेन कलेक्शन वी कलेक्ट द पेरिफेरल ब्लड प्रिफरेबली एट नाइट यानी कि 10 PM to 2 AM। ये जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं नाइट में कलेक्ट करते हैं, ठीक है, 10 PM to 2 AM, as many microfilaria show the nocturnal periodicity, ठीक है। so EDTA blood okay, so EDTA blood और fresh blood can be used for the examination। इसमें हम क्या करते हैं कि EDTA फाइल में जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं या फिर फ्रेश ब्लड जो भी हम कलेक्ट करते हैं उसके दौरान हम एग्जामिन करते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होगा, प्रिपेयर ए थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे थिक एंड थिन ब्लड स्मीयर एंड स्टेन करेंगे, हम जिम्सा स्टेन कर सकते हैं या फिर लेसिमिन स्टेन, हम दोनों ही कर सकते हैं, आइदर जिम्सा और लेसिमिन स्टेन, ठीक है। and it examine under the microscope for the presence of microfilaria and identify the species based on the morphology, okay। then हो गया concentration technique। so in case of concentration technique, the method such as Knott's concentration technique or membrane filtration, it increase the chances of detecting the microfilaria when they are present in low number, okay। so when they are present in low number it detect, okay। clear everyone? next हम देखेंगे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। सो वी परफॉर्म इन दिस केस द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। सो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो भी होगा यानी कि एलाइजा हो गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, ये करता है, ये डिटेक्ट करता है द सर्कुलेटिंग फाइलेरियल एंटीजन, ठीक है। इट डिटेक्ट द सर्कुलेटिंग फाइलेरियल एंटीजन और एंटीबॉडीज एंड आर यूजफुल फॉर द रेयरली डायग्नोसिस, ठीक है। सो इन केस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी टेस्ट यानी कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हो गया, जो भी एलाइजा हो गया, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, ये जनरली क्या डिटेक्ट करता है, ये सर्कुलेटिंग फाइलेरियल एंटीजन को डिटेक्ट करता है। कुछ एंटीबॉडीज को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, एंड ये जनरली बहुत काम का आता है, अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मेथड, ठीक है। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मेथड वी परफॉर्म द पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। सो व्हिच कैन डिटेक्ट द फाइलेरियल डीएनए विथ हाई सेंसिटिविटी एंड हेल्प टू कंफर्म द स्पेसीज। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हो गया एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। सो इन केस ऑफ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन वी परफॉर्म द सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट व्हिच में रिजल्ट इन द इओसिनोफिलिया। ये इसमें हम क्या देखते हैं, इओसिनोफिलिया को हम देखते हैं, ठीक है। सो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी डिटेक्ट द लिविंग एडल्ट वर्म इन अफेक्टेड लिम्फेटिक वेसल्स इन सम पेशेंट, ठीक है। अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो ये डिटेक्ट करता है कुछ लिविंग एडल्ट वर्म को, ये डिटेक्ट करता है which is affected the lymphatic vessels and some of some patients, okay। clear everyone? okay, clear everyone? then the next, just wait a second। so this is all about the laboratory diagnosis part। then question number last यानी कि question number 4 का शॉर्ट क्वेश्चन है, जनरली ये पूछा गया है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पैरासाइट्स कॉजिंग इन्फेक्शंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ठीक है। तो व्हिच पैरासाइट कॉजिंग द इन्फेक्शंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। सो आंसर हो जाएगा क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम एंड टॉक्सोप्लाज्मा गनिडेई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्माटोफाइट्स का दो एग्जांपल पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वन इज ट्राइकोफाइटा रूब्रोम एंड माइक्रोस्पोरम कैनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस के बारे में पूछा गया है। पहला तो हो गया HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, देन हार्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी कि HSV। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई भी ट्रीमाटोड के बारे में पूछा गया है। ट्रीमाटोड का एग्जांपल क्या होगा, फेसियोला हेपाटिका एंड सिस्टोटोमा हेमाटोबियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस कॉजिंग हेपाटाइटिस, सो इट इज HBV एंड HCV यानी कि हेपाटाइटिस बी वायरस एंड हेपाटाइटिस सी वायरस, इट इज वेरी इजी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर VI इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ओके। सो इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि ये हो जाएगा जनरली UTI हो जाएगा यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, ठीक है, एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI, ठीक है। तो दीज आर द टू एग्जांपल। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा गया है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऑफ HIV पेशेंट, वेरी इजी। वन इज कैंडिडियासिस यानी कि कैंडिडा अल्बिकन्स एंड सेकेंड इज वी हैव निमोसिस्टिक निमोनिया, ओके। एग्जांपल अगर हम बात करें तो निमोसिस्टिक जीरोवेसी, ओके। नेक्स्ट इज एग्लूटिनेशन टेस्ट, ओके, इट इज वेरी इजी। एग्लूटिनेशन टेस्ट, दैट वाइडल टेस्ट एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ओके। देन एलाइजा टेस्ट की एग्जांपल अगर हम बात करें तो HIV एलाइजा एंड HBV एलाइजा, ठीक है। एक तो हो गया HIV एलाइजा, दूसरा हो गया HBV एलाइजा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि RDTS, वी परफॉर्म द, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल दैट मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि RDT एंड डेंगू NS1 रैपिड टेस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके। क्लियर एवरीवन। So here complete your 2026 microbiology DMLT second year annual examination question, okay. So I hope you understand all the question with answer, okay. So if you understand then like my video and subscribe my channel, okay. So thank you everyone.